صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، خطے کے موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ثالثی کے کردار کے حوالے سے آگاہ کیا، ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں لیا، اپنے آئندہ دورہ سعودی عرب اور ترکی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر نے امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کی تعریف کی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ ٹکا خان ثانی سے۔ ٹکا، اس ملاقات کا اندرونی احوال بیان کیجیے گا۔ جی بالکل، جو اسلام آباد ٹاکس ہے اس حوالے سے یہ پہلی ملاقات ہے۔ اس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہائی لیول میٹنگ میں خاص طور پہ ایران اور امریکہ کے ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم نے اعتماد میں لیا، اور صدر مملکت کو وزیر اعظم نے مجموعی طور پر جو مذاکرات کے مختلف ادوار ہیں اور مختلف مراحل ہیں 21 گھنٹے ان کے تمام مراحل کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، اور وزیر اعظم نے اپنے ساتھ ہونے والی دونوں وفود کی لحظہ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی، اور خاص طور پہ ثالثی کے حوالے سے، امن کی کوششوں کے حوالے سے پاکستان کی کردار کو، اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں بطور وزیر خارجہ جو ان کی کاپشیں تھیں ان کو سراہا، اور صدر مملکت نے اس کی تعریف کی۔ اس موقع پر نہ صرف وزیر اعظم اور صدر مملکت سے بلکہ حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بھی موجود تھے، اور دوسری طرف سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف اور شہری رحمان بھی ان مذاکرات کا حصہ تھی۔ وزیر اعظم نے آئندہ آنے والے جو دورہ سعودی عرب اور ترکیہ کے حوالے سے بھی صدر مملکت کو اپنے امن کوششوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ جی ٹھیک ہے، تمام اہم امور پر بات ہوئی۔ بہت شکریہ ٹکا خان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ امریکہ کو دھچکا، ناکہ بندی کے باوجود 4 ایرانی بحری جہاز آبنہ ہرمز سے گزر گئے۔ یہ دعویٰ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی جانب سے سامنے آیا۔ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق 4 میں سے 2 شپ ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہوئے تھے، جبکہ باقی 2 جہاز تھے جو امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ اس کے باوجود ایک جہاز شارجہ سے روانہ ہوا اور دوسرا چین سے آ رہا تھا، جو آبنہ ہرمز عبور کر کے ایرانی بندرگاہ پہنچ گیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے خلاف یورپ سے بھی آوازیں اٹھنے لگی۔ اسپین کے وزیر اعظم نے اسرائیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ چین کے دورے کے دوران پیدرو سانچیز نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی صرف ایک ملک کرتا ہے اور وہ اسرائیل ہے۔ عالمی نظام کو کھلے عام چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ غیر قانونی اور یک طرفہ ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی نوعیت کے تمام معاہدے معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہماری حکومت ان معاہدوں میں توسیع نہیں دے سکتی۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ IMF نے مشرق وسطیٰ جنگ سے عالمی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں معاشی شرح سست جبکہ مہنگائی بڑھنے کی پیش گوئی بھی کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جنگ سے عالمی انرجی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں شکیل احمد سے۔ شکیل، رپورٹ کے میں مزید کیا کہا گیا ہے، بتائیے گا۔ دیکھیں، عالمی مالیاتی فنڈ نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں موجودہ معاشی حالات جو ہیں انٹرنیشنل، ان پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ جنگ کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں۔ IMF کا یہ کہنا ہے کہ اس سال گلوبل GDP گروتھ 3.4% رہے گی۔ جنگ سے پہلے یہ بہتر حالت میں تھی، اب 0.2% کمی آئے گی۔ پاکستان کی بات کریں تو GDP گروتھ سست رہے گی، البتہ مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سال معاشی شرح نمو 3.6% رہے گی۔ حکومت نے ٹارگٹ 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے عالمی بینک نے کہا تھا کہ 3% گروتھ رہے گی، اور ADB نے 3.5% کا تخمینہ لگایا تھا، لیکن وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے حکام اب بھی 4% سے زیادہ گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر انفلیشن ریٹ دیکھیں تو پاکستان میں اس سال 7.2% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور اگلے سال یہ بڑھ کر 8.4% اور پھر گریجولی یہ ڈبل ڈیجٹ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور IMF کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں جو بے روزگاری کی شرح اس سال 7.1% سے کم ہو کر 6.9% پر آ جائے گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ تقریباً ہدف کے اندر ہی رہے گا، لیکن مستقبل کا جو منظرنامہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی اس جنگ کی شدت اور اس جنگ کی جو دورانیہ ہوگا۔ اور IMF کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان سمیت تمام جو حکومتیں ہیں ان کو اب نئی ترجیحات، نئی پرائرٹیز جو ہیں وہ سیٹ کرنا پڑیں گی۔ جی
ठीक है शकील, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। शेख जराह ने इस्लामाबाद टॉक्स में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने पाकिस्तान की तरफ से मुस्तकिल कोशिशों को जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी मसाइल के हल के लिए वाहिद काबिल अमल रास्ता है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। कतर ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिश नहीं कर रहा। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान, अमरीका और दीगर शराकतदार सालिसी के लिए राबते में हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत करते हैं। सीज़ फायर का मतलब जंग का खात्मा नहीं। कशीदगी की वजह से दुनिया भर में तवानाई की कीमतों पर असरात महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड पीस मेकर। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे की उम्मीद रोशन। सालिसों ने फरीकैन को दोबारा मेज पर बैठने की कोशिशें तेज कर दी। पसे पर्दा राबते जारी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द मुतवक्के। अमरीकी और ईरानी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए मुमकिना तारीखों और मकामात पर गौर किया जा रहा है। हुकाम तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरुम्मीद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि तेहरान 5 साल के लिए यूरेनियम की अफजूदगी मुअत्तल करने पर तैयार है, जबकि अमरीका 20 साल पर इसरार कर रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बातचीत का दूसरा दौर जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले होगा। 2 हफ्ते की सीज़ फायर 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। अमरीका और ईरान को एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का मिशन। सालिसों ने कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ईरान के साथ दोबारा मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी और ईरानी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मुमकिना तारीखों और मकामात पर गौर हो रहा है। फरीकैन के दरमियान ज़ाती मुलाकात पर भी बातचीत की जा रही है। अमरीकी हुक्काम अब भी पुरुमीद हैं कि ईरान तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। ब्लूमबर्ग का दावा है कि मुज़ाकरात 2 हफ्ते की जंगबंदी खत्म होने से पहले होंगे। एसोसिएटेड प्रेस ने भी ज़राए से तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन नए मुज़ाकरात पर रजामंद हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने भी मुज़ाकरात का इंदिया देते हुए दावा किया है कि ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। We've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Very badly. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी 5 साल के लिए मुअत्तल करने की तजवीज़ दी है। ताहम अमरीका 20 साल पर इसरार कर रहा है। सालिसों को उम्मीद है कि फरीकैन के दरमियान जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। खबर यह है कि इस्लामाबाद में ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। तेहरान को एटमी मवाद मुल्क से बाहर भेजना होगा। यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल खत्म करना होगी। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा ईरान इस बात की यकीन दहानी भी कराए कि एटमी हथियार नहीं बनाएगा। आपने हुर्मुज़ खोलने पर भी पेशरफ्त की जाए। वाज़ेह कर दिया कि बातचीत के दूसरे राउंड का इन्हसार तेहरान पर है। मशरिक़ वस्ता में क़यामी अमन के लिए खलीजी ममालिक के दरमियान राबते थे। सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत की और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली पर जोर दिया। दोनों के दरमियान कशीदगी रोकने और मुज़ाकरात की बहाली के लिए राबते तेज़ करने पर इत्तेफाक हुआ। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमाराती हम मनसब से भी ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ओमानी हम मनसब से राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी और मुज़ाकरात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब आपको बताएं कि चीनी सदर से बीजिंग में अमाराती वलीअहद की मुलाकात। शी जिनपिंग ने पुरअमन बकाए बाहमी के उसूल पर अमल दरामद पर जोर दिया। कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार सलामती के ढांचे के लिए तामीर नागुज़ीर है। खित्ते में कौमी खुद मुख्तारी के उसूल की पासदारी की जाए। बैनुल-अक़वामी कानून की अथॉरिटी को बरकरार रखा ज़रूरी है। ऐसा ना किया गया तो दुनिया वापस जंगल के कानून की जानिब लौट जाएगी। चीनी सदर ने खलीजी ममालिक को मिलकर तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करने का मशवरा दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत की अनथक कोशिशों से अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पर एतमाद में बेपनाह इजाफा हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PF अकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की मरबूत कोशिशों से हम खित्ते में एक महफूज और पायदार निज़ाम कायम कर सकते हैं, जिससे दुनिया में अमन और खुशहाली को फ़रोग मिलेगा। And confidence in our armed forces and the Pakistani nation
has grown exponentially. Given Pakistan's political and military leadership's untiring, selfless, and sincere facilitation, efforts to help bring about ceasefire in the Middle East conflict through Islamabad talks. I am hopeful that with the concerted and collaborative efforts, we shall be able to find a solution for achieving a safe, secure, and stable order in the region that can advance peace and prosperity around the globe. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की हिंदू और सिख बरादरी की बैसाखी की मुबारकबाद। कहा, बैसाखी का त्यौहार फसलों की कटाई, नई शुरुआत और भाईचारे की अलामत है। गुरु नानक मोटरवे मंसूबा दुनिया भर के सिख यात्रियों के नाम वक्फ कर दिया। कहा, दुनिया भर की सिख बरादरी को गुरु नानक मोटरवे मंसूबे में शराकतदारी की दावत देते हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। फसलों की कटाई, खुशियों की बहार और नई उम्मीदों के आगाज का त्यौहार बैसाखी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बैसाखी पर हिंदू और सिख बरादरी को तहनीती पैगाम। कहा, यह त्यौहार नई शुरुआत और भाईचारे की अलामत है। ननकाना साहब और करतारपुर को जोड़ने वाली गुरु नानक मोटरवे को अमन व इत्तेहाद की शाहराह करार देते हुए मंसूबा दुनिया भर के सिख यात्रियों के नाम वक्फ कर दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वजारत मवासलात गुरु नानक मोटरवे पर ज़ायरीन को आलमी मयार की सफरी सहूलियात देगी। मोटरवे और इसके गिर्द होटल्स, मॉल्स, सर्विस एरियाज और दीगर सहूलियात PPP मोड पर तामीर की जाएंगी। दुनिया भर की सिख बरादरी को गुरु नानक मोटरवे मंसूबे में शराकतदारी की दावत देते हैं। वफाकी वजीर का कहना था, गुरु नानक मोटरवे मंसूबा मजहबी हम आहंगी और यगानगत की रोशन मिसाल साबित होगा। सिख यात्रियों के सफर को आसान और महफूज बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। खबर यह है कि एनर्जी बहरान से लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई। कोई शहर भी लोड मैनेजमेंट से ना बच सका। कराची में दौरानिया 10 से 12 घंटे पर पहुंच गया है। इसी तरह अगर बात की जाए लाहौर की, तो यहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। 4 घंटे तक बत्ती गुल रहने का शेड्यूल जारी किया गया। और फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ भी फेस्को की जानिब से 6 घंटे तक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। इसके अलावा जिससे कारोबारी अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। फिर इसी तरह गुजरावाला में भी कारोबारी तबके और घरेलू सार्फिन को ऐसी ही मुश्किलात का सामना है, जहां पर 8 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। और साथ ही इंडस्ट्रियल सिटी सियालकोट में भी 10 घंटे तक लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है। तो ये तो थी मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल। अब आपको ये बताएं कि हुकूमत का बिजली ज्यादा महंगी करने के बजाय पीक आवर्स में 2.25 घंटे लोड शेडिंग करने का फैसला। पावर डिवीजन ने शेड्यूल जारी कर दिया। आवाम को टैरिफ में 1.5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे करने के लिए तैयार रहने का भी इशारा। एलामी के मुताबिक पावर प्लांट्स में महंगा तेल इस्तेमाल करने से बिजली के निर्ख बढ़ाना पड़ते हैं। लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली के निर्खों में 3 रुपए फी यूनिट तक इजाफा रोकना है। जहीर अली खान रिपोर्ट कर रहे हैं।